क्लीन कर लिया है मैंने। 3-2.5 साल से बिल्कुल कोई दवाई नहीं खाई है। इसके लिए मैं अपने कोचेस का थैंक यू करती हूँ। थैंक यू मैम। बहुत ਵਧੀਆ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਐਂਡ ਟੇਕ ਚੰਦ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम परमजीत कौर है जी। मैं पिंड सतौतना लसटी तो बिलोंग करदी हां जी। ਇਹ ਮੇਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 14 ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਕੇਜੀ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਘੱਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਰਫੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਖਾਂਦੇ ਰਸਗੁੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਟ ਆਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਨੇਚਰਲ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਣਾ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਜੂਮ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨਮੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग मैम के लिए कर दीजिए। बहुत अच्छा मैम ने शेयर किया कि पहले तो किसी ने बताया ही नहीं थी का लो जीआई प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, हाई जीआई किन फ्रूट्स में होता है, बट इस सिस्टम के द्वारा हमें सब कुछ पता चल रहा है। एंड नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करना चाह रही हूँ सर। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम चमन लाल गर्ग है। मैं हंडाए का रहने वाला हूँ। जो मैं इस कमेटी ने जुड़िया उदो मैं शूगर भी बीपी भी बहुत सीगा ते उत्थे जो साडी चैक किया शांति अज कैंप लाया सीगा उदो मेरे माइंड ने चक लिया भी मेरा बीपी शूगर ठीक हो सकता गा। तो डॉक्टर ने कहते सारी उम्र तुसीं शूगर की दवाई भी खानी है, बीपी दवाई खानी है। मेरा 10 kg भी लोस हो गया गा ते मेरी हुण मैं कोई दवाई नहीं खाता गा। पहला मैं ऐ सीगा डॉक्टर कहते सारी उम्र दवाई शूगर की बीपी की खानी पऊगी। मेरा पेट भी बहुत सीगा, खान पीन मैं कंट्रोल कोई नहीं करता सीगा। उदे भी असीं कुदरती परमात्मा लक्की आ जिहड़ा मैं उदों उत्थे शांति हाल दे विच असीं घंटा अद्धा घंटा लाता गा। नहीं साडा माइंड नहीं बदल सीगा। माइंड ने चक लिया भी हाँ वाकई आपां नूं इह काम करना पऊगा। 70 साल हो गए सारा कुछ खांदे ने, गलत चीज़ां खांदे सीगे, हुण कोई गलत चीज़ नहीं खांदी गी। जिवें इह कहंदे ने उवें असीं करदे आ। सारा शरीर भी ठीक आ, बॉडी भी ठीक आ, बीमारी भी कोई है नहीं गी। असीं सारे क्लासां अटेंड करदे आ, असल जाने आ उत्थे संगरूर भी जाने आ, खन्ने भी जाने आ, लुधियाने भी जाने आ, कसौली भी गए सीगे। मकसद रहा भी मन दे विच जिहड़ा करांगे बस करांगे। ये मिशन इन्ना तगड़ा है जिंदगी बना के। बहुत धन्नवाद। ओके ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਨੈਸ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਇਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਫਲਾਇਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰਾਜ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम राजा मोहाली तो बिलोंग करती है ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬੋਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ ਖੋਲ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੀ ਏਜ 70+ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੂਮ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਮ ਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 46-47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਡੇਲੀ, ਆਪ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠਣਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਲੱਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀਵਨ।
एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग मैम के लिए कर दीजिए। मतलब 75 की एज में इतना अमेजिंग रिजल्ट, 45 केजीज मैम ने वेट रिड्यूस किया है। बट अभी जो समय हमारे सीनियर कोच का है, काइंडली आप सब एक एक इंच आगे आ जाइए अपनी चेयर से जहां पे भी आप बैठे हो, क्योंकि जो उनका रिजल्ट है वो उससे भी बाकमाल है। और वो हमारे उनकी गाइडेंस के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। अगर वो ना होते तो आई थिंक किसी का भी, जितने हम बैठे हैं सब वो ना होते। अभी मैं माइक अनम्यूट करना चाह रही हूँ हमारे सबसे सीनियर कोच प्रेम जी सर, आपका। थैंक यू। दोनों हाथ ऊपर करें और एक अच्छी सी क्लैपिंग करें रिद्धि के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ के लिए। आपका सेशन बाकमाल था। मतलब ऐसे सेशन की हमें डेली जरूरत है, क्योंकि आज पता क्या हाल है। आज का सिनेरियो ये है कि 10 में से 6 लोगों को शुगर हो चुकी है और लोग इसको हल्के में लेते हैं। जब लोग हमारे पास आते हैं, उनको पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है सर, बस वेट ही कम करना है। बस शुगर की गोली खाते हैं, बीपी की गोली खाते हैं। उनको ये चीजें हल्के में लगती हैं। उनको नहीं पता है कि इनका रिजल्ट क्या होने वाला है। जैसे गुंजन ने भी बताया कि जो गोली है, दवा है, ये बीमारी को दबाती है। ये बॉडी का कचरा बॉडी में इकट्ठा करती रहती है। जब भी किसी भी दवा को लंबा टाइम खाते हैं, एलोपैथी को खाते हैं, वो बॉडी में कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगी करेगी। तो ये सोच बिल्कुल गलत है कि मैं दवा खाता हूं तो मैं ठीक हूं, लेकिन लोग इसको हल्के में लेते हैं। एंड ये भी है कि उनको ये लगता है ये ठीक नहीं हो सकती, ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये ठीक नहीं होगी, पता नहीं मेरा वेट कम होगा ना होगा। वो दुविधा में रहते हैं। दुविधा जानते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। और गुरु साहब बोलते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अगर आपका मन दुचित्ता है, डबल माइंडेड हो आप लोग, आपका विश्वास नहीं है, तो आपका रिजल्ट उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए आपको, क्योंकि ये सारी की सारी गेम आपके माइंड सेट की है। एवरीथिंग इज माइंड सेट। अगर आपके ब्रेन ने उठा लिया, देखो लोग कहते हैं कि शुगर ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर भी बोलते हैं ये लकड़ियों पे ठीक होगी, हमें भी बोलते थे। लेकिन यहाँ पे कितने लोगों ने बोला, यहाँ पे बहुत कमल निहाल की बेटी ने बोला कि मेरे इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो कम हो गया है, रात का बंद हो गया है। हरमेल सिंह जी ने बताया कि उनकी टीम में हरजोत था बच्चा, उसकी शुगर 450-500 रहती थी, वो भी 122 से नीचे आ गई है। और कुलविंदर सिंह थे भवानीगढ़ से, उनकी शुगर ठीक हो रही है, वो भी हरमेल सिंह लेके आए थे। जखेपल से गगन है बेटी, उनके इंसुलिन के टीके बंद हो गए हैं 5 महीने में। ये कैसे हो रहा है? शुगर होती क्यों है? पहले तो ये लिखो आप, ये शुगर होती क्यों है। उससे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा। मेरा नाम प्रेमजीत है एंड आज से 10 साल पहले मैं सिस्टम में आया। उससे पहले हमें खानदानी शुगर थी। 70 साल हमारी फैमिली में शुगर रही है। मेरे दादी माँ, उनको शुगर थी, वो दवा खाते थे और परहेज नहीं करते थे। हमें याद है, हम छोटे होते थे तो वो कहती मुझे रसगुल्ला चाहिए, चाशनी डालो ऊपर। वो रसगुल्ले खाते थे शुगर होने के बावजूद। वो कहते थे कोई बात नहीं, मैं गोली खा लूंगी। चाय पीते थे मलाई डाल के, मीठा डाल के, ऐसे प्लेट में डालते थे, ऐसे घूंट भरते थे। मुझे आज भी उनके घूंट याद हैं। देखिए उनकी दर्द कैसी हुई, उनको शुगर अटैक करके उनकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई, ब्रेन भी सुन्न हो गया, तड़प के मरे वो लास्ट में हमारी आंखों के सामने। और मेरे ताया जी की भी ऐसी हालत थी, वो भी परहेज नहीं करते थे। शुगर का अटैक करके उनके पैर गल गए, जख्म हो गए, ठीक नहीं हुए, भरे नहीं जख्म। उनका अंगूठा काटा, फिर पैर काटा, फिर टांगे काटी, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गई। और वो कहते थे कि मुझे जीना नहीं है, ऐसी बॉडी लेके जीना नहीं चाहता। और इन्फेक्शन इतनी बढ़ गई बॉडी में, कोई डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। मेरी फैमिली में 14 खुद डॉक्टर हैं। मेरी बुआ की बेटी 2 डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, मेरे दामाद डॉक्टर हैं, मेरे कुटुंब डॉक्टर हैं, मेरी संगत में बहुत से मेरे फ्रेंड डॉक्टर हैं। लेकिन किसी ने हमें नहीं बताया कि शुगर ठीक हो सकती है, कैसे होती है। वो बोलते थे ये ठीक नहीं हो सकती, दवा खाते रहो, परहेज करो, सैर करो। और मेरे पापा, उनको शुगर थी, उनकी किडनी फेलियर हो गए और 69 की एज में दुनिया से चले गए। अब देखो 81 में दादी माँ गई, 76 में मेरे ताया जी चले गए एंड 69 में मेरे फादर भी चले गए। उसके बाद 66 में मतलब मेरे चाचा जी की एज 66 थी, उनको शुगर अटैक कर गई, उनके हार्ट में छेद हो गए, 2 छेद हो गए। वो पढ़े लिखे थे, मेरे चाचा जी एडवोकेट थे, वो भी चले गए दुनिया से। उसके बाद मेरी शुगर रहती थी 450-500। मुझे लगता था कि अभी मेरा भी ऐसा ही हाल होना है। मेरा बेटा भी कुंवारा था साहिब,
और मुझे लगता था मैं इसकी शादी कर लूँ बस, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भगवान मुझे ले जाए, मेरा कुछ भी हो जाए। मुझे लगता था कि मेरी भी बॉडी कभी सुन्न हो जाएगी मेरी दादी माँ की तरह, क्योंकि मेरी शुगर लेवल बहुत हाई रहते थे, आँखों में बहुत जलन होती थी, पिंजनियाँ दर्द करती थी, एनर्जी नहीं थी बॉडी में, पेन होती रहती थी। हर समय लगता था कि मेरे को दबाता रहे कोई पर्सन। एसिड बहुत बनता था, बहुत प्रॉब्लम थी बॉडी में, वेट बहुत ज़्यादा था, 146 किलो मेरा वेट था। और वो वज़न ही मेरी शुगर का कारण था। मुझे लगता था कि वेट तो कुछ नहीं होता, ये तो खाते-पीते करके आता है, मेरी शुगर ही ठीक हो जाए, मेरा ये माइंडसेट था। और मैं उसके लिए बहुत सैर, योगा, जिम करता था, बहुत डॉक्टर बदले एंड बहुत दवाइयाँ बदली, हॉस्पिटल बदले, बहुत कुछ करा मैंने। एक बार मैंने एक डॉक्टर को जाके ना चेक दे दिया, ब्लाइंड चेक लिख के दे दिया, साइन कर दिए कि सर आप इसमें पैसे जितने मर्ज़ी भरो, मुझे खानदानी शुगर है, मेरी शुगर ठीक कर दो बस। लेकिन वो डॉक्टर बहुत ईमानदार था, क्लैपिंग कर सकते हैं आप लोग। अगर वो चाहते तो उसमें 20 लाख, 50 लाख भर लेते, पैसा निकलवा लेते मेरे अकाउंट में से, तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन उन्होंने सच बोला, जितना उनको पता था। उन्होंने बोला, "सर, चेक को जेब में रखो, ये तो लकड़ियों पे जाके ठीक होती है।" मैंने ज़िद करी, मैंने उन्हें कहा, "सर नहीं, मुझे ठीक होना है। मेरे घर में 4 मौतें हो गई हैं, मेरा बच्चा कुँवारा है, आप कैसे भी करो।" मैं पंजाब से हूँ, दिल्ली गया था मैं। उन्होंने मुझे बोला, "इधर आइए मेरे पास।" मुझे नज़दीक बुलाया, बोला, "और पास आओ, और आओ।" मैं पास हो गया। उन्होंने पता क्या बोला? हाँ, उन्होंने बोला, "20 साल से मुझे खुद को शुगर है, मैं दवा खाता हूँ। ये ऐसी चलती है, गोली खाते रहो, बस काम टपता रहेगा आपका। टाइम कटता रहेगा, ऐसे आप गोली खाते रहो, सैर करते रहो, परहेज़ रखो।" मतलब उन्होंने भी मुझे नहीं रास्ता बताया। लेकिन एक 26 साल के बच्चे ने यार, 26 साल के बच्चे ने, जिसके फादर की शुगर ठीक हुई थी सिस्टम में, उन्होंने मुझे विश्वास दिया कि सर आप मेरा कहना मानो, आप मुझे 3 दिन दो, 3 दिन में आपको रिज़ल्ट दिखा दूँगा। 3 दिन मैंने उनका कहना माना, ट्यूशन मैंने ले लिया एंड 3 दिन में मेरी बॉडी में चेंज आना शुरू हो गया, क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी, एनर्जी बढ़िया हो गई एंड सुबह पेट अच्छा साफ होने लगा एंड जो बॉडी थी, भारीपन रहता था बॉडी में, अफारा रहता, ब्लोटिंग होती थी, सारा हल्का-हल्का फ़ील होने लगा। 3 दिन बाद मैंने उनको बोल दिया, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। जैसा आप कहोगे वैसा करूँगा, मेरे को ठीक कर दो बस। और 1 महीने में मेरा रिज़ल्ट आना शुरू हो गया और 10 साल पहले मैंने अपना 8 महीने में 46 किलो वज़न कम कर लिया। अभी तक मेरा 58 केजी फैट लॉस हो गया, बढ़िया-सी ग्रैपिंग कर सकते हो। उसके बाद मेरे वाइफ़ ने 38 केजी फैट लॉस किया। मेरे बेटे ने 16 किलो, मेरी बहू रानी ने 34 किलो, डॉक्टर गुंजन ने एंड मेरी बेटी ने 21 किलो फैट लॉस किया। मेरे दामाद ने 7 किलो फैट लॉस किया। मेरे मदर ने 17 किलो किया। मेरे ब्रदर ने 12 किलो फैट लॉस किया, उनका भी शुगर क्योर हो गया है। एंड मेरी बहू रानी ने, मतलब देखो भाभी रानी मेरी बड़ी है, उन्होंने 13 किलो फैट लॉस किया, कुछ बच्चों ने वेट गेन किया, कुछ बच्चों ने हमारे घर में हाइट गेन करा। मतलब इतना विश्वास बन गया हमें कि हमें तो पूरी ज़िंदगी छोड़ना ही नहीं है इसको। दिन में मैं 32-32 गोलियाँ खाता था एलोपैथी की, शुगर की गोली, बीपी की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, नींद की गोली, स्किन की गोली, बॉडी पेन्स, एल्प्रेक्स बहुत खाता था नींद के लिए, नींद नहीं आती थी एंड दर्दों के लिए पेन किलर खाता था। मेरे को लगता था बस मैं काम पे जाना है, मेरे को दवा दे दो, मैं काम करूँ, दवाई खा के काम चलता था मेरा। आप हैरान हो जाओगे, पिछले 10 साल से मैंने एक चवन्नी की गोली भी नहीं खाई है, क्लैपिंग करता बढ़िया सी। इसको बोलते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ। लिव योर बेस्ट लाइफ, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। मतलब मार्क्यूज ने ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसा अच्छा मुझे ये बताओ, दुनिया में कोई ऐसा खाना है? ऐसा खाना दुनिया में कोई है जिसमें 72 सब्जियां हों, वो भी तरोताजा सब्जियां, नॉन पेस्टिसाइड वाली सब्जियां हों, जिसमें स्प्रे ना हो, जिसमें 8 फ्रूट हों, बिना स्प्रे वाले, फ्रेश फ्रूट, और जिसमें 138 न्यूट्रिशन हो, जिसको 350 डॉक्टर ने मिलके बनाया हो, जिसके पीछे 350 साइंटिस्ट हो, एनबीए मतलब एनएबी, न्यूट्री एडवाइजर बोर्ड हो जिसके पीछे, कोई ऐसा खाना है दुनिया में? मैं बताता हूँ कौन सा खाना है। क्लैपिंग करो बढ़िया से। हैव यू हैड योर शेक टुडे? ये ऐसा खाना है, थैंक यू, लव यू। ये ऐसा खाना है जिसको खाने से मेरा सारा परिवार फिट हुआ है और मुझे विश्वास है कि जो लोग ये खाना खाएंगे, ये पूरी दुनिया पे काम करेगा, पूरी दुनिया पे। चाहे किसी को वेट लॉस करना है, चाहे किसी को मसल गेन करना है, किसी को मेंटेन करना है, किसी को एनर्जी बढ़ानी है, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है, बस अपना खाना-पीना ठीक करो। हम डेली बोलते हैं, डॉक्टर बहुत बदले, दवाइयाँ बहुत बदली, हॉस्पिटल बहुत बदले, तरीके बहुत बदले, अभी एक ही चीज़ बदल दो, अपना खान-पान। पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखो, आज जो सेशन है वो है डायबिटिक पे सेशन है।
तो डायबिटिक का इलाज डायबिटिक में ही है। आप ये 6-7 पॉइंट लिख लो। डायबिटिक में डी आता है ना सबसे पहले, उससे लिखो डाइट एंड डिसिप्लिन। डाइट अच्छा लो और लाइफ को डिसिप्लिन करो, तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी, ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है आई, DIA, ओके। आई से क्या है, आपको आइडियल वेट पे लेके आओ, अपना जो विस्टर फैट है उसको 3 से 5 में लेके आओ, जो अपने मसल्स हैं 35 से 45 करो। ये सिंपल इसका इलाज है। तीसरा इसमें आता है ए से क्या आएगा आपका, एक्टिविटी करते रहो, हरकत में रहो, हरकत में ही बरकत होती है। सैर करो, योगा करो, जिम जाओ, कुछ भी करो, या फ्री बैठे हो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, अपने आप को हिला लो, चला लो यार, थोड़ा अपने आप को फिट रखो, एक्टिविटी करते रहो बॉडी की। इसको पता चले कि बंदा एक्टिव है, कुछ करता रहता है, तो इससे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रभाव अच्छे आएंगे। उसके बाद आ गया बिलीव, बी से आ गया बिलीव, विश्वास रखो। 2 ही काम करो बस, अपने कोच का विश्वास करो और अपने कोच का कहना मानो, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। किंतु परंतु नहीं करनी है, कोच की कोई बात नहीं काटनी है, किसी भी चीज पे डाउट नहीं करना है, उनको पता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, वही सिखा पाएगा जिसने वो काम कर लिया है जो भी आपको करना है। अभी आपको अंतरिक्ष में जाना है, चांद पे जाना है, कैसे जाओगे? मुझे भी नहीं पता कैसे जाओगे, लेकिन पूछ लो कल्पना चावला से, वो होके तो आई है, वो बता दी कि ऐसे जाना है, तो आप जा सकते हो। आपको तैरना सीखना है, तो कौन सिखाएगा? जिसको तैरना आता है, सिंपल है। आपको ड्राइविंग सीखनी है, तो कौन सिखाएगा? जिसको ड्राइविंग आती है। अगर आपके बुआ को, फुफड़ को ड्राइविंग नहीं आती है, वो सिखा देंगे आपको कैसे है। जिस बंदे की खुद की दवाइयां नहीं चलती हैं, उनको पता नहीं है कि दवा कैसे बंद होगी, वो आपको कैसे सिखा देगा कि होगी। अभी यहाँ पे सबसे मुझे लगता है छोटी उम्र का बच्चा हरजोत है, जिसकी एज 7 साल है, उसको पूछ लो उसकी शुगर कैसे ठीक हुई है, वो बता सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको आपकी एज से बड़ा बंदा समझाएगा। आपका जो कोच है ना, वो बच्चा भी हो सकता है, वो अनपढ़ भी हो सकता है, वो गांव से भी हो सकता है, उसका रंग काला गोरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने वो काम किया है जो आपको करना है, उससे सीख लो। सिंपल सी तो बात है। सीए करनी है तो उसने सिखाई है, जिसने पहले सीए पढ़ी है, करी है। डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर ही बनाएगा, वकील बनना है तो आपको वकील ही बनाएंगे, एडवोकेट। तो जिस काम को करना है उसी बंदे से सीखो। जिसको नहीं पता है उसके चाहे पाँव पड़ो, उसके आगे चाहे आप ढंढौत करो, वो नहीं सिखा पाएगा आपको। ये सिंपल सा पॉइंट आपको समझ आ गया तो जिंदगी बदल जाएगी। बिलीव रखो और उन लोगों से सीखो जिन्होंने वो काम किया है। उसके बाद आ गया ई, एक्सरसाइज डेली करनी है आपको, डेली एक्सरसाइज करो, कुछ ना कुछ करते रहो। उसके बाद आ गया टी, टेक्निक सीखो। हर काम की टेक्निक होती है। गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, अगर आपको नहीं पता कैसे खुलेगा, आप कपड़े से खोल रहे हो, दांतों से खोल रहे हो, पेचकस से खोल रहे हो, नहीं खुलेगा। उसकी टेक्निक होती है, प्लग पाना होता है, उससे खुलता है, जक लगता है। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है जिंदगी में, उसकी टेक्निक होती है ठीक कैसे होना है। ऐसी बहुत सी उदाहरणें हैं। उसके बाद फिर ई आ गया, उसका मतलब है कि एफर्ट्स करते रहो, कुछ ना कुछ एफर्ट तो करने पड़ेंगे ना। गुरु साहब भी बोलते हैं कि चरण शरण गुर एक पेंडा जाए, चल सतगुर कोट पेंडा आगे ही लेता है। भगवान कहते हैं 2 कदम तो चल, मैं तेरे को 100 कदम लेने के लिए आ रहा हूँ। एक बंदा था, वो कहता था भगवान मुझे छप्पड़ फाड़ के दे दो, मुझे छप्पड़ फाड़ के दे दो। आपका तो बिरध है, जब भी आप देते हो छप्पड़ फाड़ के देते हो, मैंने बहुत सुना है। तो वो कई सालों से बोल रहा था। तो पार्वती जी ने शिव जी को बोला, इसको दे दो ना आप, 5 साल हो गए हैं इसको, डेली अरदास करता है मुझे छप्पड़ फाड़ के दे दो, छप्पड़ फाड़ के दे दो। तो शिव जी ने बोला मैं तो दे दूं, इसको बोलो साला छप्पड़ बना तो ले पहले, छप्पड़ तो है ही नहीं, फाड़ूंगी इसको मैं। भगवान भी कहते हैं कुछ कर, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, कुछ कर, कुछ सीख नया, विश्वास कर। जिस चीज को एक बंदे ने कर लिया उसको सब कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन सीखने की जरूरत है और एफर्ट्स लेने की जरूरत है। उसके बाद आ गया आपका एस, सिस्टम। सिस्टम में रहना है, सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। सिस्टम क्या है? डेली प्रोडक्ट यूज करना है आपको, ये करना ही पड़ेगा अगर फिट रहना है। ओके। दूसरा, जूम सेशन में कैमरा ओपन करके बैठना है, कॉल स्टार्ट होने से पहले बैठना है, कॉल एंड होने तक आपको पूरा सेशन सुनना है, क्योंकि आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको रिजल्ट भी दिखाना होता है, और आपकी आत्मा की पावर, आपकी विल पावर को बढ़ाना होता है। ये 3 हिस्सों में सेशन होता है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। सिस्टम है।
अपने कोच की रिस्पेक्ट करनी है, ये सिस्टम है, विश्वास करना है, इवेंट्स में आना है, जो सेमिनार्स होते हैं, संगरूर फैमिली डे होता है, खन्ना में होता है सेमिनार, जहाँ भी आपको कोच बोलते हैं, आपको ये नहीं कहना नहीं 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 हमारी तो शादी है, हमारा ये है, हमारा वो है, बहाने नहीं बनाने, आपको जाना है, सिस्टम में, इवेंट में आना है आपको। वहां पे फिजिकली जब मिलोगे लोगों से, आपको वो पावर ही अलग होती है। नंबर 4, अपने आप पे विश्वास रखना है कि मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। गुंजन ने क्या बोला था कसौली में, सारे बोलो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और लोगों की आंखों में पानी आ गया था। जिनको लगता था मेरे से नहीं होगा, उन्होंने बोला आई कैन डू इट, वो कर जाएंगे सब लोग जिन्होंने बोला था। तो अपने पे विश्वास रखो। और छठा क्या है कि कभी क्विट नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। पूरी दुनिया आपको मिलके नेगेटिव करे ना, तो भी आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव ही रहना है, विश्वास रखना है। जिस दिन आपका विश्वास डोल गया, उस दिन ये खेल खत्म हो जाना है। रेत को हाथ में पकड़ा किसी ने कभी? रेत को ऐसे पकड़ सकते हो, वो हाथ में से खिसक जाती है, ऐसे यहां से निकल जाती है। कृष्ण भगवान को पूछा था अर्जुन ने, भगवान ऐसी क्या चीज है जो इंसान को मारती है, और ऐसी क्या चीज है जो इंसान को तार देती है, तारती है? तो कृष्ण भगवान ने हंस के बोला था, शक, शंका, ये इंसान को मारती है। आप घर में किसी पे शक करना शुरू कर दो, रिश्ते बिगड़ जाएंगे आपके। आप सिस्टम में शक करना शुरू कर दो, सिस्टम आपके हाथ से निकल जाएगा, आपका सारा खत्म हो जाएगा खेल। शंका और शक जो है ना चीजें, ये आपको मारती हैं। और बिलीव, विश्वास और आस्था, आस, विश्वास, प्रयास, ये चीजें आपको तारती हैं। उम्मीद रखनी है, विश्वास करना है, प्रयास करते रहना है, ये चीजें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। ये तो कुछ भी नहीं है कि सर मेरी दवा चलती है शुगर बीपी की, मेरी हार्ट की दवा, ये तो कुछ भी बातें नहीं है। आप तो लोगों की दवाइयां बंद करवा दोगे, इतनी पावर मिलेगी आपको सिस्टम में। बस सीखो, सीखना जरूरी है। यहाँ पे बैठो, सीखो और लोगों की सेवा करो, बस सिंपल सी हर्बल लाइफ है। आपके बच्चे दुनिया पे राज करेंगे। लास्ट में फिर से ई आ गया है, उस पे ऊपर लिखो एनर्जी, आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ती है जैसे आप काम करते हो। तो आप लोग डाइट अच्छी हो गई, आपकी संगत अच्छी हो गई, सोच अच्छी हो गई, तो बॉडी में एनर्जी अच्छी होती है, आपके विचार अच्छे हो जाते हैं। जब भी आपकी बॉडी में डोपामाइन बनना शुरू होता है अच्छी चीजों से, तो आपकी बॉडी क्योर होना शुरू होती है, आपकी हीलिंग पावर बढ़ती है। जब भी आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बनता है, तो आपकी बॉडी में बीमारियां बनती हैं। शुगर होता क्यों है? देखो, हम सबको ना डेली खुराक में 35 से 40 ग्राम फाइबर चाहिए, लेकिन इस सिस्टम के बाद लोगों के पास फाइबर है ही नहीं। वो सोचते हैं कि हमारा सलाद से पूरा हो जाएगा फाइबर, फ्रूट से पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे पूरा नहीं होता है। उनको ये भी नहीं पता है कि सैलेड के ऊपर कितना पेस्टिसाइड है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। जब भी बॉडी में फाइबर पूरा नहीं होता है, तो आने वाले 5, 10, 15 साल में हर किसी को शुगर होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में क्या, जो भी हम खाना खाते हैं ना, गुरबानी में पंक्ति आती है, मैं आपको बता दूं, 600 साल गुरु साहब ने पहले एक बात लिखी है, देख फरीदा जू थिया शक्कर हुई विस, साईं बाजों अपने बेदन कहिया किस। इसका मतलब ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं ना, हर खाने में शुगर होती है, चाहे आप रोटी खा लो, चावल खा लो, घास भी खा लो आप, शुगर हर चीज में होती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो बॉडी में शुगर बनता है। जो हमारा इंसुलिन बनता है बॉडी में, पैनक्रिया बनाता है, पैनक्रिया को ऑर्डर होता है कि आप इंसुलिन बना दो। जब भी उस हिसाब से इंसुलिन बनता है बॉडी में 5, 10, 20 यूनिट, तो वो शुगर को उसमें एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। भगवान ने कैसा सिस्टम बनाया है कि आपने जो भी खाया उसका अंदर शुगर बना, और ब्रेन ने पैनक्रिया को ऑर्डर किया कि मेरे को इतनी यूनिट इंसुलिन चाहिए, तो उसने इंसुलिन बना दी, और आपकी जो शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अभी प्रॉब्लम क्या है, जो लोग ओवरवेट हैं उनके पैनक्रिया के ऊपर फैट जम गया है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। इंसुलिन बनती तो है, लेकिन वो बॉडी उसको ले नहीं पाती है। जो लोग अंडरवेट हैं उनका पैनक्रिया वीक हो गया है, वो भी नहीं बना पा रहा है। समझ रहे हो आप? या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, इंसुलिन ज्यादा बनना शुरू हो गया, बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है, उस वजह से आपकी बॉडी में जो शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, उसकी गांठें बन जाती हैं, वो गांठें ब्लड में आ जाती हैं, उसको हम शुगर बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। बात बिल्कुल सिंपल सी है, और ठीक होगा खाने पीने से। अगर आपका खाना पीना सही है तो आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपका खाना पीना सही नहीं है तो दवा ही आपका खाना बन सकती है, दवाइयां आपका खाना बन सकती हैं। सिंपल सी बात है, इसको अगर आप समझ गए
तो जिंदगी टोटली चेंज होगी। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हमें कोई शुगर के बारे में बात करनी है, ये आपको ब्रेन हेल्थ है, आपका हार्ट हेल्थ है, लीवर हेल्थ है, आपके ऑर्गन्स हैं, ये सारी चीजों पे काम करता है ये सिस्टम। ये जो आप पी रहे हो ना, इसमें पता नहीं क्या जादू है। देखो, इसी को पीने से मेरी फैमिली में खानदानी शुगर ठीक हो गई है। ये कोई दवा नहीं है, डिस्क्लेमर है। मेरे वाइफ को हार्ट प्रॉब्लम थी, वेरिकोन वेन थी, उनकी दवाइयां बंद हो गई हैं। एंड मेरे सिस्टर को अथराइटिस की प्रॉब्लम थी, गठिया था, वो ठीक हो गए हैं। और मेरे बहुत ज्यादा तेजाब बनता था, एसिड बनता था, भगवान की कृपा हो गई है, डाइजेशन बढ़िया हो गया है। मतलब मैं आपको क्या क्या बताऊं कि क्या क्या हमारे घर में रिजल्ट आए। मेरे मदर को कैंसर था, डॉक्टर बोलते थे 4 महीने में आपके मदर की डेथ हो जानी है, कैंसर बहुत फैल गया है। लेकिन 90 दिन से पहले मेरे मदर का रिवर्स हो गया था कैंसर। एंड 1 साल में मेरे मदर बिल्कुल क्योर हो गए थे। मतलब ऐसे ऐसे हमारे घर में रिजल्ट हैं। इसी वजह से हम इंस्पायर हुए, सेवा में आए। हमारे यहाँ का कारण यही है, नहीं तो हमारे पास अपना काम बहुत है। हमारा कपड़े का गारमेंट्स का काम है, टाइम 1 मिनट का नहीं था। लेकिन इंस्पायर होके, मार्केट की स्टोरी सुन के कि उन्होंने देखा कि मेरे मदर की डेथ हुई है, लोगों की माँ को बचाऊंगा, तो मेरे मन में भी ये है कि मेरे घर में रिजल्ट है, हम लोगों को रिजल्ट देंगे। जो खुशियां हमें मिली हैं हम लोगों को बताएंगे, ये खुशियां बांटेंगे। क्योंकि आप सबने सुना है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होता है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, तो हमें लोगों का गम भी कम करना है। ये कर्जा है हमारे ऊपर। डेली लोगों से बात करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, आत्मा की पावर को बढ़ाना है। उसके लिए 3 ही तरीके बताए हैं कि डेली भगवान का नाम लेना है, शुक्रान करना है। जिस भगवान ने हमारे घर में अपना भेजी है ना, उसका डेली शुक्रान करो। हे वाहिगुरु, अभी हमारे घर से जाए नहीं, बस हमारे घर में रहे, हमारे घर में दवाइयां दोबारा ना आ जाए, हमारे घर में हर भलाई रहे, हमारे घर में हमारे कोच का आशीर्वाद रहे, हमें सेशन में बैठने की हिम्मत दो भगवान। वो कैसा है कि ऐसी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कम होना, ऐसे कुछ है ना। ये डेली आपको अरदास करना है कि हमारे घर से ये छीन मत लेना। बस आपने जो हमें खुशियां दे दी हैं, हम आगे बांटे, ये बढ़े। जितना बांटोगे खुशियां बढ़ेंगी। माता पिता के डेली पांव छू के माथे पे लगाओ, घर में सुख शांति बनी रहे। उनको लगे कि हमारे बच्चे हमारे कहने में हैं, हमारे बच्चे आज भी हमारे से आगे बच्चे ही हैं। कभी भी पलट के उनको जवाब नहीं देना है। अगर आपकी गलती नहीं भी है, आपको डांट पड़ी है, तो भी आपको चुप रहना है। वो भूल जाते हैं, 10 मिनट में भूल जाएंगे वो। उनको भी रियलाइज होता है कि मैंने डांटा है। जाके बैठो, उनके पांव छू के माथे पे लगाओ, वो आपको प्यार ही देने के लिए, इतना प्यार देंगे आपको, आप सोच भी नहीं सकते हो। और आपके जो कर्मों में नहीं है वो भी मिल जाएगा। आप करके तो देखो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाएंगे राम, कोई बुला के तो देख ले। आप करके तो देखो, कुछ भी अच्छा करके देखो, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तीसरा है लोगों की हेल्प। लोगों की जरूर हेल्प करनी है, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं। 800 करोड़ लोग आज भी बीमार हैं, पता है आपको। पीजीआई में कभी जाओ, ओए होए, वहां पे मतलब बैठने की जगह भी नहीं है। बीमार लोग सीढ़ियों में पड़े हैं, स्ट्रेचर पे पड़े हैं। जब मेरे पोते का ऑपरेट हुआ था ना, 1.5 साल पहले जून में, तो वहां पे थोड़े दिन मैं भी रहा बच्चों के साथ। वहां पे मैंने लोगों का हाल देखा, मैं बता नहीं सकता। स्ट्रेचर पे लोग पड़े हैं, मल मूत्र निकला हुआ है, कपड़े खराब हो रहे हैं, बदबू में पड़े हैं। और पाइप पता है कहाँ का पड़े हैं? नाक में, मुंह में, छाती में चीर के पाइप डाला हुआ है। जितने भी सुराख हैं बॉडी में, सब में पाइप डाला है। वॉशरूम का भी पाइप डाला हुआ है, स्टूल का भी पाइप डाला हुआ है। पेट की मतलब ये क्या होती है, धुन्नी बोलते हैं इसको, सेंटर में, इसको भी काट के इसमें पाइप डाला हुआ है। 8 पाइप डले हुए हैं। ना तो घर आने लायक है, ना वहां पे केयर हो रही है। और जो बंदा ऊपर से उनका घर का फैमिली मेंबर खड़ा है, वो खुद बीमार हो रहा है, क्योंकि वहां ना तो खाने को अच्छा मिल रहा है, बाहर का खाना पड़ता है, ना नींद पूरी हो रही है वहां पे। और बंदा सामने तड़प रहा है, तो साथ वाला कैसे सो जाएगा। और डॉक्टर कम है, बीमार ज्यादा है। ये एक हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, सब में यही हाल है। बुरे हाल हैं लोगों के, उनको मैसेज दो कि आप ठीक हो सकते हो। आपका एक मैसेज किसी की जिंदगी बचा सकता है। जिंदगियां बदलेंगी जब आप बदलोगे। ओके, अपने आप को बदलो, लोग बदलेंगे, जिंदगी बदलेगी। और फिर होएगा क्या, ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। 27 तारीख का जो हमारा इवेंट आ रहा है, उसके लिए सबको रेडी रहना है। वो आपका खुद का इवेंट है, वो उसका नाम है संगरूर फैमिली डे। वो फैमिली डे है, वहां पे आपको विद फैमिली आना है। आपकी टीम भी आपकी फैमिली है, उनको साथ में लेके आइए। जिसको दिल से प्यार करते हो ना, उसको लेके आओ, सिस्टम दिखाओ। उसका ब्रेन वहां पे देखो, ब्रेन है, आंखें हैं, कान हैं, फिर हार्ट है। ब्रेन वहां पे सारा ऑब्जर्व करेगा सिस्टम क्या है, आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, दिल से फील करेगा। और उसका जब मन मानेगा, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, सारी जिंदगी फिट रहेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच।